Hello students, good morning. Here I'm making video on IPA symbols. I was asked that please explain IPA symbols once again. So here I am explaining you IPA symbols. You all know that IPA symbols, right? International Phonetic Pronunciation. Why International Phonetic? Why this one is required? International phonetic is required because language changes, especially in India. It is said that कोस कोस में बदले पानी और कोस 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 में बानी कोस कोस में बानी. It is said that every 15 miles language changes like water. When you move from your place then water changes. It is said that कहते हैं ना कि भाई पानी बदल गया मतलब अपनी जगह से धीरे धीरे नेचुरली पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है ना, क्वालिटी चेंज हो जाती है. अभी तो आजकल इतना यूनिवर्सल होने लगा है कि हर जगह बिस्लरी, हर जगह ये वाले पानी भी अवेलेबल है, बॉटल में ही अवेलेबल है. पर पहले जब बॉटल में नहीं आता था पानी, मुझे याद है, तो धीरे धीरे जैसे आप जाओगे तो आपको टेस्ट समझ में आता था कि पानी बदल गया. हम अपनी नानी के घर जाते थे, वहाँ का पानी थोड़ा अलग होता था. हमारे घर जो हमारी बुआ के बच्चे आते थे तो उनको हमारे यहाँ का पानी अलग लगता था. तो दैट इज़ कॉल्ड कि भाई पानी बदलता है. लेकिन वाणी भी एक्चुअली बदलती थी, क्योंकि हम हमारी नानी के यहाँ जाते थे तो वो लोग खड़ी बोली बोलते हैं. अब वो उनके यहाँ भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं समय पर पहले, तो वो बिल्कुल खड़ी बोली काय आ गए, दिस वे दे आस. फिर हमारे घर जो बुआ के बच्चे आते थे उनको शायद कहीं ना कहीं टोन हमारा लगता होगा अलग. वो दिल्ली में रहते हैं तो इस तरह से अ, हर हर चेंजेस लैंग्वेज में और पानी में चेंजेस. तो इसीलिए ये कहा गया कि कोस कोस में बदले पानी, कोस कोस में वानी, है ना. तो ये चलता था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो फिर ज़रूरत पड़ने लगी कि आप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाओ, नहीं तो लैंग्वेज का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि अगर आपको इफ़ यू नीड टू समथिंग देन यू विल टेल मी ए सपोज यू विल टेल मी दैट ही इज़ अ गुड मैन. आई विल से मैन, so I would say okay, okay, आदमी, right? So this is two languages, Hindi and English. In English, this kind of person is called man, or in Hindi that's आदमी. But then in French, German, Tamil, Marathi, Gujarati, number of languages are there. So then every language has its own vocabulary and grammar. So can you imagine that it's a lots of confusion, and that is why one universal language was the need of hour, and that is why they made international pronunciation, which is internationally pronounced the same, right? Alphabets, international pronunciation alphabets. So now, how many international pronunciation alphabets
44 means a human language. English, in English, 44 sounds can be created by a human being. Means for oh, this way, that's a mm, uh, meaningful voice, right? That is created by a human being. I would like to show you that's yesterday only I sent one information to my students. Wait a minute. Here I will show you. So that is very important. Wait a minute. Hmm. Here yesterday I shared with my student what is in linguistics a grapheme is the smallest functional unit. Why? Because all IPA symbols is the smallest functional unit of a writing system. The word grapheme is derived from ancient Greeks. Grapho means write and suffix "eme" by analogy by with phoneme and other emics units, right? The study of graphemes is called, okay. This is grapheme is the smallest functional unit of a writing system, like A, B, C, or A, B, C, something like this. This is called, all shapes are called graphemes. Then phoneme. A phoneme is the smallest unit of sound. That's the smallest unit of sound, okay? In spoken language. Please take care. And grapheme is the smallest unit of sound which is used for written representation of the sound. So one is written in representation and another is spoken language, right? Often a letter or a group of the letters, right? Cat. So that's a letter cat, and phoneme are the phonemes, and the letter CAT are the graphemes. I tell you. I tell you what is this? See, for IPA symbols we were talking about, right? 44 symbols are there which are divided into consonants and vowels, right? Consonants and vowels. Consonants are 24. Consonants are 24 and vowels are 20. तो कौन आईपीएस सिंबल्स मतलब एक तरह से मैं बहुत उसको सिंप्लीफाई करूं तो आई टेल यू दैट्स अ वेट अ मिनट दैट विल बी द मैं अगर उसको बहुत सिंप्लीफाई करूं तो हम कह सकते हैं आवाज़ें। जो आवाज़ें हैं वो है 44। ठीक है, इतने तरह की आवाज़ ह्यूमन बीइंग, जो कि कैसी आवाज़ें, जो पहचानी हुई आवाज़ें हैं, जो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके अलावा नहीं, हर आवाज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो रिकग्नाइज है, आइडेंटिफाइड आवाज़ें हैं, ये 44 साउंड्स होता है। ठीक है, अब इन 44 साउंड्स को किस में डिवाइड किया है? कॉन्सोनेंट्स में और वॉवल्स में। इनका ये शॉर्ट टर्म है। मैंने बताया कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 24 और वॉवल्स कितने हैं? 20। सबसे पहले ये समझ लो
कि कॉन्सोनेंट्स जो है वो क्या है, वो शब्द है, और वॉवल्स भी शब्द है ऑफ कोर्स, लेकिन कॉन्सोनेंट्स ऐसे शब्द हैं जिनको जिसमें ब्लॉक बनता है ना। और कॉन्सोनेंट्स ऐसे शब्द हैं, दोनों शब्द हैं, ये वाले शब्द ऐसे हैं जिनको हम ओरल कहते हैं, ओरल, क्योंकि ये फ्री होते हैं, क्योंकि इसमें मुंह में ये वाले, इनमें बोलते समय मुंह बंद नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये 20 वॉवल्स देखते हैं, है ना। वॉवल्स 20 होते हैं जो डिवाइड होते हैं, 20 आर डिवाइडेड इंटू 12 प्लस 8, है ना। अब 12 क्या होते हैं, तो 12 होते हैं, इनको कहते हैं मोनोफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स, है ना। ये मोनोफ्थोंग्स हैं, और इनको कहते हैं डिफ्थोंग्स। किसको, इनको कहते हैं डिफ्थोंग्स। ये डिफ्थोंग्स है, कौन से, ये वाले, तो ये होते हैं डिफ्थोंग्स, ठीक है। दीज आर द डिफ्थोंग्स विच आर 8। मोनोफ्थोंग्स देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड मोनोफ्थोंग्स, मोनो मीन्स वन, सो दिस इज मोनो, मोनोथोंग्स, मोनोफ्थोंग्स, राइट। मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं मोनोफ्थोंग्स, 12। कैसे याद करोगे, वो बेस किस पे होते हैं, मोनोफ्थोंग्स मतलब वॉवल, और वॉवल्स कौन से होते हैं, नॉर्मली जो वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं, और ये आईपीए सिंबल्स हैं, ये लेटर्स हैं पर ये आईपीए सिंबल्स हैं, मोनोफ्थोंग्स, है ना। अब देखो आप कैसे याद करोगे इसको, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वे। ए, तो ए के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखना, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये भी ए है, ये इसके वेरिएशंस हैं ए के, ये भी ए है, राइट, ये भी ए है, और ये है, और ये है। ये क्या है, देखो मैं बताती हूँ, ये है अ, ये टाइट वाला अ है, ये ए है, ए, है ना, ये अ है, और ये आ है, आ, इस तरह से। एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल है इसका, ये है अबाउट, इसका एग्जाम्पल है कट। साउंड में सुनना, पूरा फोकस साउंड में होना चाहिए। इसका फैशन, फैशन, और इसका हर्ट, और इसका बार, है ना। अब देखो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप अबाउट बोलते हो तो अ के लिए आपका मुंह थोड़ा सा ओपन होता है, तो ये सारे अ के ही वेरिएशन, तो अब जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा मुंह, इस अ में बोलने में, यहाँ जब हम कट बोलते हैं तो हमको टाइट, थोड़ी फोर्स लगती है, तो ये कट, कट, बट, हट, डट, शट, ये सब के साउंड है। फिर ये ए और ई का मिक्स साउंड है, फैशन, ए, फैशन, एयर होस्टेस, राइट, ट्रेंड। जब आप ए, कैसे ए बोलोगे तो आपका मुंह आधा खुलेगा, ए नीचे चले जाता है, तो ये साउंड आता है। फिर ये जो ये साउंड डबल डॉट याद रखो,
इसका मतलब होता है लॉन्गर साउंड बोलते हैं। कोई भी डबल डॉट वाले इसमें जब साउंड पढ़ोगे आप, वो सब लॉन्गर है, उसमें आपको थोड़ी देर तक रुकना है। आपने बोला गर्ल, ऐसा, पर्ल, हर्ट, शर्ट, कर्ट, ये सारे इसके डबल डॉट के एग्जाम्पल हैं। और लास्ट है ये विच इज फार, बार, कार, दीज आर द आ की मात्रा। ये आपने याद कर लिए, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अभी आपने ये ये और ये सारे, और ए इस इटसेल्फ, ये सारे ए के वॉवल के आपने 5 साउंड देखे। ए जो नॉर्मल है उसको काउंट मत करो, पर बाकी आपने देखे ये वाले साउंड, है ना। तो इसमें काउंट कैसे करोगे इसको? इट विल बी काउंटेड एज दिस वे। देखो इसको, ये 1 2 3 4 एंड 5, है ना। फिर अब बिल्कुल ईजी है। उसके बाद ए के बाद क्या आता है? ई आता है। तो जो ई है वैसा का वैसा है जिसकी मात्रा है ए। जब भी ए की मात्रा, जैसे आपको लगाना है सेटिंग, एग्जाम्पल है सेटिंग, है ना। तो मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रही हूँ, अभी आपको शायद आइडिया नहीं होगा, पर सुनना, देख लेना इसको। ये है सेटिंग, सेटिंग। क्यों? क्योंकि ये जो ए की मात्रा है, अगर आप इसको हिंदी में लिखते तो आप इसको लिखते सेटिंग, सेटिंग, है ना। तो ये मात्रा लगी है ए की, से, और ये लिखा है टिंग, ये लिखा है टिंग, ये इंग है, इंग, ये एक नया साउंड है ना, इंग। फिर तो ये ए भी सीख लिया आपने और ई भी सीख लिया। अब बचा आई ओ यू। एक बात याद रखना, इसमें कैपिटल लेटर नहीं चलता, इसमें सारे स्मॉल लेटर चलते हैं। तो ये आई और, सॉरी, ये आई आई और आई, ओ को ऐसे बनाते हैं, ओ और ओ, यू और यू। ये आई छोटी की मात्रा है, ई बड़ी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, ओ और ओ, और थोड़ा सा फोर्स करके ऊ और ओ, ऐसा है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? शिप और शीप। तो श जो है एक नया वर्ड है, श, उसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ। ये श है, इसका मतलब श है। तो मात्रा लगाई आपने शिप, तो ये लिखा है शिप, और शीप, तो ये आपने बड़ी की मात्रा लगा दी, शीप। कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते, मेरे से धोखे से हो गया, ये शीप, है ना। फिर ओ के 2 वेरिएशंस हैं, ओ और ओ। ये ओ लिखा है, इसका ओ और ओ। तो इसमें पॉट, इसका एग्जाम्पल है पॉट और कॉट। आप स्पेलिंग में बिल्कुल मत जाओ, आप ये देखो कि इसका साउंड क्या आ रहा है। तो ये पॉट का अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँ तो मैं पॉट का कैसे करूँगी? पॉट, और कॉट का करना है मुझे, तो मैं करूँगी कॉट। सॉरी 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 सॉरी, देखो, अरे एक मिनट, हाँ, देखो, पॉट और कॉट, आप दोनों को अगर ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो ये हो जाएगा पॉट, और ये हो गया कॉट। आप बोल के देखोगे तभी समझ में आएगा कि बोलने में ये जो है, ये
कॉट मात्रा जोर से लगती है, और पॉट में थोड़ी कम लगती है। तो ये दो साउंड हुए। और लास्ट है ऊ की मात्रा, ये वाले ऊ के दो वेरिएशन है, ऊ और ऊ और ऊ। जैसे पुट और शूट, पुट और शूट। तो ये लिखा है श, ऊट। इधर हिंदी में देखते हैं हम इसकी मात्रा लगा के, तो हम देखते हैं ऐसा होता है पुट और शूट। तो इसकी मात्राओं को देखेंगे अगर हम, तो कैसे होती है इसकी मात्रा, ये छोटी की मात्रा और ये बड़ी की मात्रा। तो ये मोनोफ्थोंग्स होते हैं। मैं एक साथ सारे मोनोफ्थोंग्स लिखती हूँ, आप ध्यान से देखना। ये है मोनोफ्थोंग्स। सॉरी, फिर से लिख रही हूँ, देखना। अ, आ, ई, फिर आई, ओ, यू। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में शायद आ जाएगा कि ये ए के कितने हुए, 5, ई का 1, इसके 2, इसके 2 और इसके 2। आप काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने मोनोफ्थोंग्स होते हैं, 12, है ना। डिफ्थोंग्स मैं बाद में बताऊंगी, इनको याद करो, ये मोनोफ्थोंग्स है। अब डिफ्थोंग्स के दूसरे स्लाइड शो में बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सोनेंट्स। जो अभी हमने देखे कि आईपीएस सिंबल्स में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 8 जो है वो नए, वो लर्न करना है ना। 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं बताती हूँ। देखो, आप क्या करो, पहले लिख लो, हमेशा ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसा लिख लो, ABCD, 5 लेटर्स ही लिखना, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST, है ना। और लास्ट वाला मैं फिर से लिखती हूँ क्योंकि ये प्रॉपर मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, और ये एक बचा Z। अब आपको इसको कैसे याद करना है, सबसे अच्छा तरीका बता रहे। देखो, पहले आप AEIO और U को निकाल दो। तो अब क्या क्या बचा, आप इसको याद रखना। मैं इतने स्क्रीन में फिर से मुझे बैक करना पड़ेगा, तो मैं बताती हूँ कैसे। देखो, ए तो आपने निकाल दिया था, अब बचा बी। तो जैसे ही आप वॉवल लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब आपको बाहर में लिखना पड़ेगा वॉवल। कैसे, बी। आप ऐसे इमेजिन करना कि क्या है ये ए तो है, ए तो वो निकल गया, बी। अब सी उन्होंने जो कैंसिल हो रहे हैं साउंड, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो आप ऐसे याद रखोगे। कैसे, सी जो है नहीं है, डी, है ना। ए पहले कैंसिल वाले साउंड सुन लो। कैसे, मान लो ए तो ठीक है, बी भी ठीक है, सी इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। ABCD ई, ई तो वॉवल है, FGHIJ, जे को भी कैंसिल कर दिया, बताती हूँ क्यों। IJKLMNOPQ भी कैंसिल है, RSTUVWX, राइट, वाई। और ये 5 साउंड क्यों कैंसिल हो गए, उसका रीज़न है कि क्योंकि ये सी से बनता है क्यूट, और सी से बनता है सिप, और नहीं, सी से बनता है सिनेमा, है ना, सिनेमा। तो अब क्या हो रहा है,
यहाँ एक तरफ आप देखो तो यहाँ पे एक तरफ तो क्यूट है, ये क्यू है, और एक तरफ है सिनेमा, सिनेमा। तो अब यही सेम लेटर एक तरफ क बोलता है और एक तरफ स बोलता है, इसलिए उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर आते हैं जे में। तो जे में अगर बोलोगे तब समझ में आएगा, तो आप बोलते हो जे में जिप, जिप, है ना। फिर जे से बोलते हो आप गैजेट, है ना। और जे से बोलते हो आप जज या जिंजर, जिंजर। तो ये अलग अलग तरह के जब बोलते हो तब समझ में आएगा। तो अलग अलग तरह के साउंड्स निकलते हैं, उसके कारण उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, ये तीनों जी को तो कैंसिल कर दिया। ये 5 साउंड्स नहीं है। तो अब नए साउंड्स क्या है, तो अब मैं पूरे लिख रही हूँ, देखना। बी, सी तो छोड़ दो, डी, ए बी सी डी ई, ई तो वॉवल है, एफ, जी, ए बी सी डी एफ जी, एच, आई, आई वॉवल है, जे हटा दिया, है ना। फिर के, एल, कर्सिव नहीं लिखना, एम, एन, ओ वॉवल है, पी, क्यू हटा दिया, आर, आर ऐसा लिखना। फिर एस, टी, यू वॉवल है, वी, डब्ल्यू, एक्स, अरे हाँ एक्स भी हटाया है प्लीज़, एक्स, है ना। फिर वाई, वाई भी हटा दिया, और जेड। ये कितने हैं काउंट करते हैं, देखो कितने हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं ये है 16। तो ये पूरे 16 तो जो है वो नए पुराने हैं। इन साउंड्स को आपको याद नहीं रखना, ये तो याद होंगे आपको। अब हम आते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है नए वाले साउंड। ये है ये ये दिस, क्यों बताती हूँ अभी इसको, है ना। ये साउंड्स आपको याद रखना है। 8 साउंड्स हैं, ये 6 ये हो गए, है ना। 7 ये हो गया, और 8 ये क्या है, मैं लिख के बता रही हूँ आपको, देखो। ये जो साउंड्स है, ये ज है, और ये भी ज है, ये द है, और ये थ है ना। ये श है, और ये च है, ये य है, और ये इंगा है, इंगा। क्यों, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग्स देखो तो आप स्पेलिंग्स में देखोगे कि यहाँ पे हम लिखते हैं जज, जज। तो जज में आप देखना, सॉरी, जज लिखते हैं हम, ये है जज। तो अब आप देखो इस जज में 2 बार ज आ रहा है ना। ये भी ज है और ये भी ज है। एक जगह जे यूज़ हुआ है, एक जगह ये डी जी यूज़ हुआ है, और दोनों का मतलब ज है। तो उन्होंने उसके लिए एक नया साउंड इसके लिए दिया, ये है ज, है ना। और ये भी है ज, क्योंकि ये जज, ये एक नया साउंड दे दिया इन्होंने, जिसको कहा गया जा, जज, ठीक है। दूसरा साउंड आपको याद करना है, ये वाला। ये क्या है, ये है प्लेजर, लिखते हैं हम प्लेजर। तो ये जो है, ये
साउंड ज है ना। तो क्या हो जाएगा ये प्ले, प्ले, ये प्ले, और ये ज, ये लिखा है प्लेजर, है ना। तो ये साउंड इस तरह का है। विजन, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, विजन, विजन। तो कैसे लिखोगे, विजन, विजन, ये लिखा है ज, दिस इज ज, विजन, है ना। फिर दो और नए साउंड्स है, वो क्या है, वो है, दोनों नए साउंड्स है, वो है, दीज आर द, ये वाले, ये और ये। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा स्पेलिंग में दिस और थियरी, है ना, दिस और थियरी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि टी एच, दिस, टी एच, थ, कन्फ्यूजन है। तो उन्होंने ये नए साउंड्स दे दिए, और इसका नए साउंड्स का कैसे, दिस, ये है दिस, ये है दाऊ, है ना, ये है दोज, है ना। तो इन सब में टी एच जो है वो क्या है, द है। तो दिस कैसे लिखेंगे, दिस लिखेंगे, ये द लिखा है, और मात्रा लगा दो, और इस, दिस। दाऊ लिखना है अगर आपको, तो आप दाऊ लिखना है मान लो आपको, तो आप लिखोगे, पुराना जो यू का मतलब दाऊ वाला होता था ना, तो वो दाऊ, ऐसा। परंतु टी एच से थ भी बनता है। एग्जाम्पल क्या है, थिंकिंग, एग्जाम्पल है थियरी, एग्जाम्पल है थीटा, है ना, थीटा, ये जो थीटा बनाते हैं ना, ये थीटा। अगर ऐसा लिखना है तो फिर आप क्या लिखोगे, थियरी, तो इसका, सॉरी, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको ऐसे बनाओगे, थी, य, री, ये लिखा है थियरी। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ये थियरी लिखा है, क्योंकि ये टी एच से क्या बना यहाँ पे, टी एच से बना यहाँ पे था, थियरी, है ना। तो ये थ है। अब नेक्स्ट साउंड है, नया साउंड है जो वो है, सॉरी, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये श है और ये च है, ये श लिखा है और ये च है। एग्जाम्पल कैसे, इसका एग्जाम्पल है श और च, ये श है और ये च है, तो इसके लिए शिप, तो आपने लिखा शिप, और चिप, तो आपने लिखा, ये च लिखा है, चिप। कैसे, मतलब अगर हम इसकी स्पेलिंग में देखते हैं तो वो तो ऐसी होती है, शिप और चिप, है ना। तो ये क्या हो जाता है, चिप। तो च के लिए हम क्या लिखते हैं, CHIP, चिप। पर स्पेलिंग कुछ भी हो, आपको ये याद रखना है ना। फिर लास्ट है य, इसका मतलब होता है य और इंगा, य और इंगा, या NG। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है येट, ये लिखा है येट, ये य है, और ये एग्जाम्पल है किंग, ये किंग। तो जहाँ भी NG वाला वर्ड आता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो जाएगा, येट तो येट ही है, सिंपल है, येट, ये येट लिखा है ना। और किंग बताया मैंने, किंग, तो किंग का कैसे हो जाएगा, किंग, ये लिखा है किंग, फोनेटिक ट्रांस। बस ये आपको सीखना है। तो नए साउंड्स कौन कौन से सीखे हैं आपने, नए साउंड्स आपने सीखे ज और य, है ना,
और द और थ और श और च, है ना, एंड दैट्स अ एंड य एंड वन मोर इज दैट इज इंगा। बस ये सिंबल्स आपको याद करना है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इफ़ यू if you still confused and any query, you are most welcome. You can write me, I will reply you. Thank you so much. Bye.